مجھے عزیز رکھتے تھے، ان سے بڑی خلوت تھی. اور واحد صاحب کے یہاں، واحد صاحب عموماً مغنی صاحب کے یہاں جاتے تھے، اور مغنی صاحب کے یہاں جب وہ جاتے تھے تو مجھے عام طور سے وہ ساتھ لے لیتے. 2 جگہ کا وزٹ ان کا عموماً ہوتا تھا. ایک تو رحمانیہ کمپاؤنڈ، کیا کہتے ہیں آڈیٹوریم یا کتاب منزل تک، یا رحمانیہ میں بھی کبھی کبھار چائے سکتے. اور کھانا بھی وہ کھاتے تھے عزیزیہ ہوٹل، یا پھر ان کے بھائی کا جو ہوٹل رہا ہے پٹنہ مارکیٹ کے پیچھے، ان ہوٹل میں حبیبیہ ہوٹل. مغنی صاحب کے یہاں جاتے تھے ہم لوگ، وہ لال باغ میں رہتے ہوں یا پھر وہاں کیا کہتے ہیں عالم میں. تو مغنی صاحب چائے سے ضرور توازو کرتے، لیکن ہمیشہ سادہ چائے پیتے اور بغیر لیمو کی چائے. بغیر لیمو کی چائے پینے والوں میں 2 میں جانتا ہوں، ان کو جانتا ہوں، اور سہیل عظیم آبادی صاحب کو آپ جانتے ہیں. مغنی صاحب کی زندگی کا ایک الگ طرز تھا، جیسے ادب میں بھی ان کا ایک الگ طرز تھا. کپڑے کے معاملے میں بہت نصیب تھے. گھر سے نکلتے تھے تو بغیر شیروانی کے، وہ گرمی بھی ہو بغیر شیروانی کے نہیں. اور پاؤڈر ضرور لگاتے تھے. آپ نے بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، یہ باتیں شاید بتانے لوگوں نے لکھی ہو یا نہیں لکھی، یا لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے، میں خود بات ہوں ان کا دیکھا رہا. میری ان سے قربت رہی. اور جب حلقہ ادب میں مجھے بھی شامل کیا گیا تو میں شاید سب سے کم عمر اس میں وہ شخص تھا جو اس کی عاملہ میں شریک تھا. اور کسی وجہ سے میں نے آپ تو جانتے ہوں گے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ تحریک اگر جو ہے اردو تحریک میں، اگر کوئی اردو کو جو بہار میں اردو کا درجہ دوسری سرکاری زبان کا درجہ ملا، وہ بہار ریاستی انجمن تفسیر اردو کے ذریعے. اور اسی کا ادبی پلیٹ فارم تھا حلقہ ادب، جو مریخ نکالتا تھا. آپ کو جانتے ہیں ادب کے معاملے میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو نقطہ نظر رہا ہے اس سے الگ رہا ہے. اسلامیات ہو، اخلاقیات ہو، یا کیا کہتے ہیں تہذیبی اقدار ہو، جن کے وہ پاسدار رہے، آخر تک وہ پاسدار رہے. اور اسی طرح کا وہ رسالہ یہ بھی تھا، کیا کہتے ہیں مریخ بھی تھا. بالکل جدید ادب کے خلاف اور ترقی پسندوں کے خلاف. تواتر کے ساتھ ان کے تبصرے شائع ہوتے تھے مریخ، لیکن کبھی 5 جملوں میں، کبھی 7 جملوں میں، کبھی 10 جملوں میں، یہی ان کا تبصرہ ہوا. پتا نہیں، میں نہیں جانتا. اور کئی کتابوں کے وہ تبصرے لکھا کرتے تھے. مغنی صاحب کی جو پہلی کتاب تھی نقطہ نظر، ہم لوگوں میں بیشتر لوگوں نے دیکھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب سنگ مل کی حیثیت ہے. وہ پہلی کتاب تھی. اس کے بعد تو انہوں نے درجوں میں کتابیں لکھی، تقریباً 4 درجن کتابیں لکھی. ان میں انگریزی کی بھی ہے، اسلامیات کے حوالے سے، قرآن اور دینیات کے حوالے سے بھی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسا کہ اس میں حدیث بھی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے. لیکن ادبی اعتبار سے جو میں نے کہا نقطہ نظر کے بعد کسی حد تک زیادہ اعتدال بھی اہم، میری نگاہ وہ اہم ہو سکتی ہے. ایک کام انہوں نے جو یہ کیا کہ عام طور سے جو برسر اقتدار ادیب و شاعر ہوتے ہیں، وہ یونیورسٹی کے پروفیسرس ہوتے ہیں، حضور ہوتے ہیں، ان کو ادب میں بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے. بہار میں جو چند ایک افسانہ نگار تھے، ان میں اختر رنجوی ہو، سہیل عظیم آبادی ہو، شکیلہ آپا ہوں، یا کچھ اور بھی، شین مظفر پوری کا کوئی نام نہیں لیتا.
ये इम्तियाज बढ़ता गया कि इसलिए वो शायद किसी बड़े ओहदे पे नहीं थे या वो खुशामद पसंद नहीं थे। क्योंकि मेरी भी बहुत कुर्बत रही है, कई दसियों बरस तक हमारे यहाँ शाम में अक्सर वो आते रहे, शाम की चाय पीते रहे थे। उनके यहाँ भी बहुत अनानियत पसंद नहीं। तो मोदी साहब के यहाँ जो अनानियत पसंद नहीं रही है वो कुछ ज़्यादा रही है, लेकिन उनके यहाँ भी जिस चाहते तो बल्कि मैंने बड़ी कभी कभी बड़ी नाराज़गी होती थी, वो किसी को पढ़ते ही नहीं। ये भी दिलचस्प बात है, हिंद मत पूरी किसी को नहीं पढ़ते। एक ज़माने में अजीज अहमद वाली मेरी की किताब है, मैं ज़माने में छत पे बैठता था और गर्मी का ज़माना था, तो शाह साहब भी आते थे, शामुल शाह साहब, और वो भी आते थे, बेताब साहब और दूसरे लोग भी आ जाते थे अक्सर। और मेरे साथ ये था कि उनसे बात भी करनी है और इस काम को भी मुकम्मल करना था। तो कहते क्या लिखते रहते हैं, छोड़िए ना, हमका अजीज आप छोड़िए ना, कौन है अजीज आप। कभी कभी मुझे तकलीफ भी होती। हमने कहा पढ़ा है कभी आपने? तो नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। मोहनी साहब का मामला था कि वो पढ़ते थे लेकिन अपने तौर पर उन तहरीरों को जज्ब करते और वो भी बात तहरीरों को नाकाबिले इतना समझते। सारे लोग यहाँ बड़ी तादाद में शुद्ध अदब के हवाले से लोग मौजूद हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लामिया के तहजीबी अफराद और अखलाकियात के हवाले से उन्होंने जो तहरीरें लिखी मौजूदी साहब जैसे किताब लिखी, तो मैं ये समझता हूँ कि उस हवाले से अगर ये देखेंगे तो मौजूदी साहब से अब्दुल बारी साहब या डॉक्टर अब्दुल बारी, सैयद अब्दुल बारी साहब या इब्न कमल साहब या मुमताज़ अहमद खां साहब या चंद बहुत नामवर लोग नहीं थे, माफ कीजिएगा, बहुत नामवर लोग नहीं हुए उस कैटेगरी में जिन्होंने उस तरह, और मैं ज़ाती तौर पर उस तरह के अदब का मैं कायल नहीं रहा, पता नहीं क्यों, अपना हर आदमी का मिजाज होता है। तो जाहिर है कि मोहनी साहब ने जो तहरीरें लिखी उनके यहाँ जो असबियत रही, जो करामत पसंदी रही, रवायत परस्ती रही, अगर उन्होंने उससे थोड़ा सा लिबरल होकर के उन्होंने अगर अदब का मुतालिया किया होता या उनकी तहरीरें होती तो उनका बुलंद और उनका मकाम और ज़्यादा बुलंद। मुझे तो हैरत उस वक्त हुई, पता नहीं कैसे, जब रसूल हैदर पे जो है उन्होंने उनकी जब तहरीर आई, अफसाने को उन्होंने नॉवेल कह दिया, क्योंकि मैंने अब पढ़ाया भी है में और किताब भी आई है, और तालिब इल्मी के ज़माने में भी मैं बहुत मुतअस्सिर था रसूल हैदर को। तो मैं तो बिल्कुल शर्दा रह गया। उन्होंने जो जवाब पेश किया बहुत लचर जवाब, कि मैं इसको अफसाना नहीं समझता हूँ। कोई बात नहीं कि आप इसको अफसाना समझिए, या जैसे उनका अपना ये था कि अदब से हमको लगता है कि वो किताब उन्होंने पढ़ी नहीं, क्योंकि उनमें जो सलाहियत थी कि बगैर किताब, वाहिद साहब ने कहा कि पढ़ के लिखा तो तबसरा कर नफरी साहबी के नज़्म है, तो पढ़ के लिखा तो तबसरा किया। मोहनी साहब में इतनी सलाहियतें थी कि उन्होंने नॉवेल को अफसाना, अफसाने को नॉवेल बना दिया, बगैर पढ़े हुए उन्होंने बाज़ाब्ते तहरीर लिखी। 12 जो डिटर्मिनेशन की बात आई, तो अक्सर नकवी साहब कहते थे कि जंगली जानवर के बारे में, मैं नाम नहीं लूँगा, कि मुगली में बहुत बड़ी सिफत है, उस जंगली जानवर की सी सिफत है कि जो सोचा और एक संग चले तो चले, दूसरी तरफ मुड़ के वो नहीं जाते थे या मुड़ते नहीं। ये खूबी भी कर सकते हैं और ये खामी भी कर सकते हैं, अदम में खामी। तहरीक ने सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि वो एक बुनियादी एक रिसाला था जदीद अदब का, तो जो तहरीरें उसमें आती थी, फिर बाद में बहुत सारे रिसाले आए, जो शकुन का नाम सबसे ज़्यादा रहा, तो वो काबिल इतना ही नहीं समझते थे, नसरी नज़मों को नहीं,
उन अफसानों को जिनमें कहानी पन नहीं हो, समझा ना, तो जिसमें किरदार नहीं हो, मिसाली किरदार नहीं हो, तो वो उनकी निगाह में वो अच्छा अदब नहीं हो सकता था। नतीजा ये हुआ कि वो आज़ाद नज़्म हो, नसरी नज़्म हो, या उस कबील की जो जदीद तहरीक से जैसे तजदीदी अदब मान लीजिए, या अलामती नज़्म, या अलामती गज़लें, सॉरी अलामती कहानियाँ, वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि उनका नाम कई देशों से बहुत अहम है, अदब के हवाले से भी और उर्दू तहरीक के हवाले से। आज जो उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिला, बिहार रियासती उर्दू के आंदोलन के जरिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 70 में तो उसमें शामिल रहा था। 67-69 में आप लोगों को शायद पता होगा कि उर्दू को इलेक्शन इशू बनाया गया, और कांग्रेस का जो रवैया रहा था उर्दू के सिलसिले में वो अधर्म निशम, सोशलिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने, इन सारे लोगों ने मिल करके वो एक पेलेज में दस्तखत कराया, और उसके सरबराह थे गुलाम सरवर और अब्दुल मुगनी बाद में शामिल हुए उस कारोबार। तो आज अगर उर्दू को जो मकाम मिला है उसमें सबसे बड़ा अहम रोल रहा है अगर किसी का, तो वो अलहाज गुलाम सरवर का और जनाब अब्दुल मुगनी साहब का। उस ज़माने में उर्दू का नाम कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बना था 47 में, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। तो कई वर्षों तक उसका असर रहा, और ये कहा जाता था कि ये पाकिस्तान की ज़बान। इससे बढ़ के जहालत की बात और क्या हो सकती है? पाकिस्तान में उर्दू है कहाँ? ये तो मैं नहीं जानता हूँ उसका। पाकिस्तान में जहाँ सराइकी है, जहाँ पंजाबी है, ये बलोचियों की अपनी ज़बान है, उर्दू तो है नहीं कहाँ कहीं। हालांकि वहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू रही है शुरू से। जैसे हिंदुस्तान में हिंदी कहीं नहीं है, माफ कीजिएगा, 3 स्टेट के अलावा, 3.5 स्टेट के अलावा सबकी अपनी अपनी ज़बान है। यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, या दिल्ली कहिए अगर वो आज़ाद है, तो उसके अलावा सबकी अपनी ज़बान है। लेकिन सबसे बड़ी ज़बान अगर है तो वो हिंदी है या हिंदुस्तानी है। आपको पता होगा कि 1930 के आसपास ये तनाज़ा शुरू हुआ था उर्दू और हिंदी से। ये भी हम लोग आप लोग वापस, और इसलिए शायद महात्मा गांधी को ये कहना पड़ा कि हिंदुस्तान की अगर ज़बान होगी तो वो हिंदुस्तानी होगी, तो दूसरी दोनों लिपियों में लिखी है। और मैंने तो हाउस में अपने काउंसिल में एक बात, तकरीर में ये बात की, तो उर्दू तो उसी दिन ख़त्म हो गई, उसी दिन उसकी जड़ काट दी गई। जब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है उर्दू को जो है बराबर वोट आया, और डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद ने जो प्रिजाइड कर रहे थे, उन्होंने कास्टिंग वोट से जो है उर्दू खत्म कर दिया। सब जानते हैं, जानना चाहिए अगर नहीं हम लोग जानते। 12 मैं फिर दोहराऊंगा, अक्सर मैं कहता रहा था कि उर्दू ख़त्म हो रही है, उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है, तो सरकार की तौर पर भी हो, नेशनल लेवल पर भी हो, लेकिन हमारे घरों से उर्दू खत्म हो रही है, जिसके हम जिम्मेदार हैं। दूसरों को, सरकार को क्यों जिम्मेदार हम करा रहे हैं? इसलिए दोस्तों, मैं बहुत लंबी बात हो गई। मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको सच्चा खराज अब्दुल मुगनी को पेश करना है, तो जिस तहरीक को, जिस आंदोलन को उन्होंने छेड़ा था, जो चिराग जलाया था, उसको हम जलाए रखें और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद करते रहें। शुक्रिया।